absolutely correct. Now let us look at the technical terms for these tissues. In this lesson, we will look at the former type of tissues. The dividing tissues in plants are known as the meristematic tissues. Where does the word meristematic come from? It comes from the Greek word meristos, meaning divided. Well, the main function of this tissue is to divide and help the plant grow. So where do you think you will find this tissue? Exactly. They are at all the places where the plant's parts show growth. And as we just studied, all the parts of the plant do not show growth. Growth is restricted to only certain parts of the plants. What's interesting is that meristematic tissues is named differently based on the part where it is found. And do you know how let us see how apical meristem tissues are found in the growing tips of... पोजीशन होती हैं. What about the last tissue type? Intercalary? ठीक है. Where is this tissue found? Not differentiated into any specific They types. are growing very Once fast. they divide and mature after completing the growth of the plant, their characteristics change. Then they are differentiated into components of... At the initial stages, these tissues are not differentiated into any specific types. तो इनको कोई Once काम they नहीं divide मिला. and mature इनको after क्या completing करना the है? growth of the plant, their characteristics Division. change. They have to Then they divide are the differentiated into components of a single tissue. Now, let us Division of see labor takes place only after ये maturity. meristematic tissue है. Meristematic tissues are fast dividing. Let us see one more video in which meristematic tissue divides very fast. So, division in meristematic tissue. So, now Hello everyone. Now we already know that most of the plant tissues are dead tissues and that some of them act responsible for the lengthening, that is on cells, and that is for a reason as it is No. full of cell sap to provide the So let we will see it later on, and okay. Class 9th tissues notes. Here is information from Study Rankers. कुछ चीज़ें हमने देख ली थी कि टिश्यू क्या होते हैं. टिश्यू दैट ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच group together and do a particular kind of job, that is called tissues. Now actively dividing cell, meristematic tissue क्या होते हैं? It consists of actively dividing cell जिसके cells तेजी से divide होंगे, that is called meristematic tissue. Now so meristematic tissues are of further 3 categories जिसको हमने देख लिया था. And next kind of tissue are तो टिश्यू हमने दो तरीके से देखे. एक तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है और दूसरा कौन सा देखा? ओके. नाउ I think it is now okay. Just एक मिनट, ये
नाउ जो टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक है और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट, तो ये क्या है? दिस इज द डिवाइडिंग टिश्यूज। क्या ये डिवाइड करते हैं? आर दे डिवाइड? और ये डिवाइड करते हैं, जबकि परमानेंट उनका एक डिवाइड नहीं करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है। तो इस तरीके से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। व्हाट आर दोज डिफरेंसेस? लेट अस सी द डिफरेंसेस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड difference between meristematic tissue and permanent tissue. So, According to Vedantu, meristematic tissue has Now. cells small in size. so meristematic tissue ये यंग टिश्यू है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है। इट इज यंग टिश्यू जो अभी अभी जिसमें, अच्छा आप ये बताओ, जो यंग बच्चा होता है, छोटा बच्चा है और एक एडल्ट है, किसमें ज़्यादा ग्रोथ होगी? छोटे बच्चे में कि जो 30 साल का है? छोटे बच्चे में ज़्यादा ग्रोथ होगी। सो इट इज़ ए यंग टिश्यू, इसीलिए इसे यंग कहा है। दैट इज़ कैपेबल ऑफ कंटिन्यूअस डिवीजन। दैट इज़ capable of continuous division। इसमें डिवीजन कंटिन्यूअस है। जबकि परमानेंट टिश्यू क्या है? इट इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू। that has lost its ability to divide। that has lost its ability, यानी इसका मतलब है कि डिवाइड नहीं करते हैं, एबिलिटी टू डिवाइड। और जबकि ये डिवाइड करते हैं, नाउ इसमें कैसी सेल्स होंगी? क्या अलग अलग होगी? कुछ कोई लंबी होगी, कोई पतली होगी, कि सब गोल होंगी? बोलो। इट कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। सब एक जैसी होंगी, चाहे रूट में हो, चाहे शूट में हो, चाहे इंटरकैलरी में हो, कहीं पर हो, चाहे लेटरल हो, सब एक जैसी स्फेरिकल बॉल जैसी। इट कंसिस्ट ऑफ, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंशिएटेड, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऑल सेल्स आर सिमिलर। जबकि कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशिएट इट, हाँ बेटा बोलो, हाँ बोलिए, अब आ रही है? अच्छा अच्छा, सो हाँ आ रही है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड सेल का मतलब क्या होता है? माही डिफरेंट, हाँ, इट डिफरेंशिएटेड सेल्स। ऐसा नहीं है, ब्रोकन डाउन नहीं है, इसका मतलब है कि डिफरेंट शेप्स, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। इसका मतलब क्या है? सेल्स ऑफ क्या, जाइलम और फ्लोएम की सेल डिफरेंट है, उनका शेप साइज अलग अलग है क्या? ये देख लो, क्या इसमें ये जो परमानेंट है, इसमें पैरेनकाइमा, स्लेरेन, कॉलेनकाइमा, स्लेरेनकाइमा सब अलग अलग बनी है क्या? इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सेल्स हैं, क्या वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं? और जबकि छोटे बच्चे जब सब पैदा होते हैं, सब एक जैसे ही लगते हैं क्या? सो इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, और साइज भी अलग होता है। सबसे लंबी सेल हमारी बॉडी में कौन सी होती है? हाँ, तो है ना डिफरेंशिएशन। सो सेल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, इस यही इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और जबकि इसमें सब एक जैसी होती है। नेक्स्ट इज कि इनमें ये जो पहला वाला है, ऑल लिविंग सेल है, इसमें ऑल लिविंग सेल्स। और जबकि इसमें देखो स्लेरेनकाइमा जो बार्क में, कोकोनट का जो बाहर वाला जूट होता है,
क्या उसमें वो लिविंग सेल होती है कि डेड सेल है? हाँ, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ डेड भी होंगी। सो इस तरीके से जो ये वाली है कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल, कंसिस्ट ऑफ बोथ, लिविंग भी होंगी, लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स। अच्छा, इसके बाद यानी इसमें डेड सेल्स भी होंगी। सो बाकी अब सेल्स इसमें स्मॉल होंगी, ठीक है, तो और सेल्स आर स्मॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस होगा, काफ़ी होगा, जगह होगी ना, जब नया नया डिवीजन होता है बीच में जगह होगी। एंड इंटरसेलुलर स्पेस जानते हो कि सेल के बीच में स्पेस। तो अगर आप कोई नई पत्ती को ऐसे ऐसे करो तो क्या वो लूज पत्ती रहेगी, और कोई जो ऐसे लकड़ी को करो तो ऐसे हिलेगी क्या? लकड़ी क्यों नहीं हिलती है? क्या उसके बीच में एक सीमेंट जैसा कोई सब्सटेंस जमा हो जाता है जिसको ल्यूमेन कहते हैं, जो यहाँ पर भी दिखाया गया, ये रेड कलर का है, या ये बिल्कुल रेड है, ये बिल्कुल कोकोनट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स आर स्मॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस इज देयर लार्ज। इंटरसेलुलर का मतलब है कि सेल के बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो यहाँ पर स्पेस ज़्यादा रहेगा। अभी डिवाइड हो रही तो जगह जगह ज़्यादा है ना बीच में, देख लो ज़्यादा जगह दिख रही। सो सेल्स आर स्मॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस इज लार्ज। जबकि इसमें क्या है, सेल्स कैसी होंगी, तो सेल्स बड़ी हो चुकी होंगी, ग्रो हो रही, तो इसमें ग्रो होती फिर डिवाइड होगी, जल्दी जल्दी डिवाइड करती जा रही है, तो इसलिए इसमें सेल्स लार्ज होती हैं। और नाउ सेल्स आर लार्ज एंड इंटरसेलुलर स्पेस इज कंपेरेटिवली लेस, क्योंकि अब उनमें क्या सेल वॉल बन चुकी होगी बीच बीच में, एंड इंटर सेलुलर, एक मिनट, स्पेस इज लेस। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी ऐसे है, तो क्या जो प्लांट में सेल वॉल के अंदर सेल रहती, क्या सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, तो फिर कहाँ जगह बची, कुछ बच पाएगी क्या? तो इस तरीके से इसमें बची नहीं। बहुत जो अभी बिल्कुल नई नई बनी है उनमें थोड़ा बहुत अभी सेल वॉल नहीं डेवलप हुआ है। जैसे मैंने परमानेंट टिश्यू में अगर आप देखोगे तो ये पैरेन्काइमा है, इसमें थोड़ा सा है, ध्यान से देखो अपनी बुक में, थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा है, लिख रहा है ना इंटरसेलुलर स्पेस, लिख भी रहा है, लेकिन इसमें तो वो बात है ही नहीं, कहीं दिख रहा है स्पेस, देख लो अपनी बुक में। उसमें क्या सीमेंट, क्या उसमें सीमेंट जमा हो गया जिसको ल्यूमेन कहते हैं, सीमेंट लाइक सब्सटेंस। तो अब एक है लीफ है, तो लीफ में लीफ की डंठल होगी, तो उसमें क्या होगा कि अब जैसे परमानेंट टिश्यू है, ये लीफ का पिटियोल है, ये लीफ है, तो लीफ तो थोड़ी सॉफ्ट भी होगी, लेकिन जो इसका पिटियोल है और जो फिर बाद में और इसका बार्क बनेगा वो सब, तो आप ये देख लो इसमें भी 3 डिवीजन्स हैं। जो लीफ होगी वो थोड़ा सा मुलायम हो सकती है, तो इसलिए परमानेंट टिश्यू में कौन सा आएगा, क्या पैरेन्काइमा, और जो इसका पिटियोल है, डंठल है, इसको पिटियोल कहते हैं। तो पिटियोल या स्टैक, लीफ की स्टैक, इसमें क्या होगा, क्या कॉलेनकाइमा, मतलब इसमें ऐसी सेल्स जिसमें सीमेंट जमा हो गया है उसको कॉलेनकाइमा कहेंगे। और अभी जो नई नई अभी दिखाया नहीं था आपको कि परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप हैं, पैरेन्काइमा जिसमें कोई सीमेंट जैसा सब्सटेंस न जमा हुआ हो, और फिर जिसमें ल्यूमेन या सीमेंट जमा हो जाए तो कॉलेनकाइमा, और जिसमें बहुत ज़्यादा जमा हो जाए वो डेड भी हो जाए, इतना जमा हो जाए कि मर जाए, तो उसे क्या कहेंगे, स्लेरेन्काइमा। देखो नीचे लिखा है सब,
तो 3 तरीके के इसके टाइप हैं। तो तीसरा कौन सा है, जैसे बार्क सेल, इन सब में कौन सा होगा, क्या, स्लेरेन काइमा। तो इसके 3 टाइप्स कौन कौन से हैं बताओ। कॉलन काइमा एंड स्लेरेन काइमा। तो पेरेन काइमा, कॉलन काइमा, एच नहीं होगा, कॉलन काइमा तो सी होगा। और तीसरा कौन सा होगा, दैट इज स्लेरेन काइमा, इसमें भी एच नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है कि सेल्स लार्ज हैं, और इसमें बोलो माई स्लेरेन काइमा, तो एल होगा ये। अब देखो इसके बाद सेल वॉल कैसी होगी, क्या इसमें थिन होगी कि इसमें, सेल वॉल इसमें अभी जस्ट बनी है या बिल्कुल बहुत पतली है, सेल वॉल इज थिन। और इसमें कैसी होगी, सेल वॉल इज थिक। ठीक, तो अब आगे देखो कि ये सारे इसके ये है, इसको किसी फूड की ज़रूरत नहीं, रिजर्व फूड की। तो इसमें कोई दे डू नॉट कंटेन, प्लांट इसको देगा खाना, कंटेन रिजर्व फूड, दैट इज रिजर्व फूड। इनमें कोई रिजर्व फूड की ज़रूरत नहीं। वैसे फूड जो इसमें रिजर्व होता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, इन सब में फूड क्या है, रिजर्व फूड है, स्टार्च के तौर पर होता है। आलू में प्लांट अपना फूड कहाँ कहाँ रखता है रिजर्व करके बताओ, जैसे पोटैटो हो गया, जो उसके ग्रेन्स हैं, जो सीरियल्स हैं, अनाज हैं, उन सब में रिजर्व करता है, लेकिन वो हम लोग उसका रिजर्व फूड तोड़ लेते हैं। तो ये जो नए प्लांट के पार्ट्स हैं, इनमें कोई रिजर्व फूड नहीं होता, डज नॉट कंटेन रिजर्व फूड। जबकि जो पुराने पार्ट हैं वो थोड़ा खाना कहीं ना कहीं लीफ में या कहीं ना कहीं रखते हैं। सो ये न्यू ग्रोइंग पार्ट्स हैं, इनमें कोई रिजर्व फूड नहीं है। और इसमें क्या होता है, दे कंटेन रिजर्व फूड। कार्बोहाइड्रेट जानते हो, ग्लूकोज, तो वही ग्लूकोज बाद में अगर उसमें से पानी उड़ जाए तो क्या बन जाएगा, क्या वो स्टार्च बन जाएगा, क्योंकि न्यू फ्रूट्स में ग्लूकोज है, वो डेंस हो जाए, उसमें पानी उड़ता चला जाए तो क्या पोटैटो बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा, क्या वो राइस बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा, या फिर वो गेहूं बन जाएगा। तो अगर पानी उसमें से निकाल दो ग्लूकोज में तो क्या बन जाता है, क्या स्टार्च। तो स्टार्च किसमें किसमें होता है, दैट इज पोटैटो है, राइस है, व्हीट है, ये सब स्टोर्ड फूड है। कैसे फूड है, स्टोर्ड। और वो इतने स्टोर्ड हैं कि आप अपने घर में गेहूं रख भी सकते हो, क्या खराब हो जाएगा, क्या स्टोर्ड फूड कभी खराब होता है कि फ्रूट खराब होगा। तो प्लांट अगर उसको चाहे तो सालों स्टोर करके रख सकता है, लेकिन हम लोग उसे तोड़ के खा लेते हैं या अपने घर में स्टोर कर लेते हैं। तो उस तरीके से स्टोर्ड फूड स्टार्च है, समझ में आ गई बात। और जो फ्रेश फूड है वो कौन सा है, ग्लूकोज। तो डू नॉट कंटेन रिजर्व फूड, ठीक है, एंड कंटेन रिजर्व फूड किस फॉर्म में रखता है, एज स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में रखता है। नाउ सो ये सारी चीज़ें, क्या ये जो सेल्स हैं ये प्लांट ग्रोथ में इन्वॉल्व हैं, हिस्सा लेती हैं, इन्वॉल्व इन प्लांट ग्रोथ। और ये सब जैसे जाइलम हो गई, फ्लोएम हो गई, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्लेरेन्काइमा, क्या ये सब प्लांट के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती हैं कि बस अपना काम करती रहती हैं। तो डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ में इनका कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। नाउ इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे एपिकल, और कौन सा हो गया, लेटरल और इंटर कैलरी। और जबकि इसमें क्या हो जाएंगे,
यही परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल हैं जाइलम, फ्लोएम और पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्लेरेनकाइमा। तो ये डिफरेंट टिश्यूज़ के दो पार्ट हैं, एक है डिवाइडिंग टिश्यूज़ और एक है नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। समझ में आ गई बात? पलटे पेज। Now हो गया? तो अब हम देखेंगे कि जो टिश्यूज़ हैं वो प्लांट में दो तरीके की हमने देखी। एक कौन सी होती है? हाँ, देखो टिश्यू दो तरीके के हैं। एक देख लिया मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। परमानेंट में दो कौन कौन से टाइप हैं अनुराग? सिंपल परमानेंट और दूसरा कौन है बताओ? कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स, जिसमें एक ही तरीके के सेल्स हों। सो ये कैसे होते हैं? सिंपल मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सेल्स। और जबकि ये कैसे होते हैं? मेड अप ऑफ, हाँ बिल्कुल ठीक है, मोर देन वन काइंड। जाइलम चार तरीके की सेल का मिलकर बना होता है। मोर देन वन काइंड ऑफ सेल। और न मानो तो अगले पेज पे देख लो कितने टाइप की सेल है। लिखा है जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा। तीन तो ऐसे ही लिख दी, अब में जाइलम लिखा है, देख लो अगला ही पेज है। जाइलम ट्रैकीड, ये सब मिला के जाइलम बने हैं। तो बताओ हुई कॉम्प्लेक्स की नहीं? और लिखा भी है बगल में, कॉम्प्लेक्स लिखा भी है कि नहीं? तो इस तरीके से सिंपल एक ही की बनी होती हैं। अच्छा, सिंपल के फिर अलग अलग टाइप हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? सो सिंपल परमानेंट टिश्यू जरा देखें। सो नाउ जस्ट होल्ड फ्लो चार्ट ऑफ टिश्यू। These pictures should match. ओके, अब देखिए सो सिंपल में तीन टाइप हो गए। कौन कौन से हो गए? एक हो गए पैरेनकाइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा और तीसरा स्लेरेनकाइमा। और इसके दो टाइप कौन से हुए कॉम्प्लेक्स के? जाइलम एंड दूसरा कौन सा हुआ? फ्लोएम। एक पानी पहुंचाएगा तो दूसरा क्या पहुंचाएगा? खाना। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितनी टाइप की हैं? दैट इज एपिकल और दूसरा एपिकल, देन लेटरल एंड तीसरा कौन सा है? इंटर कैलरी। तो ये तीन टाइप की हो गई। अब हम देखेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल
एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सो लेट अस सी सिंपल परमानेंट टिश्यू. That plant tissue which is made of one kind of cells is called simple permanent tissue. एक ही तरीके की सेल की बनी होती है. एम आई ऑडिबल? ठीक है, तो ये एक ही तरीके की हैं. अब जरा देखो, एंड इट्स टाइप्स आर, इसके टाइप्स क्या हैं? तो पहला टाइप कौन सा है? पैरेनकाइमा. तो पैरेनकाइमा टिश्यू क्या होती है? नाउ पैरेनकाइमा इज जैसे कि a few layers of cell from the basic packing tissue, a type of tissue. ये किस तरीके की टिश्यू है? It is a kind of packing tissue. It is a packing tissue. जैसे कि मान लो मैं एक ही कुकुम्बर का पीस दिखाऊं, खीरे का, तो क्या यहाँ पर इसके ऐसे ऐसे सीड्स होते हैं? ऐसे तो यहाँ सीड्स होंगे, और फिर ये एक पीस है, दिस इज वन पीस ऑफ कुकुम्बर. ये अब बाकी पैकिंग है, तो ये तो पूरा पैक है ना, यहाँ भी तो सेल्स हैं सारे, और इसका जो आउटर कवरिंग है वो थोड़ा हार्ड होगा क्या, जो इसका छिलका है, और बाकी अंदर सॉफ्ट होगा. तो अंदर जो सेल है वो सब कौन सी हैं? क्या वो पैरेनकाइमा है, जो उस किसी भी सब्जी को या लौकी को पैक करती हैं, उसके स्पेस को फिल करके रखती हैं क्या? बताइए. तो ये किस तरीके की टिश्यू हो गई? जो चारों तरफ है पैरेनकाइमा, बीच में तो हमने ये दिखा दिए कि ये सब इसके क्या हैं? ये सीड्स हैं, और बाकी टिश्यू कौन सी हो गई? ये. सो दीज आर पैरेनकाइमा. So it is a packing tissue. It consists of relatively unspecialized cell. ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं है. It is अभी जस्ट समझो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थोड़ी बड़ी हो गई हैं, अब उन्हें डिवीजन नहीं, तो उनको थोड़ा सा कोई काम सौंप दिया गया, हाँ थोड़ा बहुत काम करो. तो ये कैसी हैं? इट इज़ वेरी लेस स्पेशलाइज्ड. इनको बहुत काम करने की निपुणता नहीं होती है. दे आर नॉट एक्सपर्टाइज इन एनी जॉब. तो कैसी है बताइए? इट इज़ वेरी लेस स्पेशलाइज्ड. तो इनसे कहा गया ठीक है तुम पैकिंग करोगे. लाइस टिश्यू, जैसे आपका अमेजन से कोई सामान आता है तो क्या पैक हो के आता है कि हिले डुले ना? तो प्लांट में भी तो हर जगह पैकिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? तो इसलिए ये कैसी टिश्यू हो गई? पैकिंग टिश्यू हो गई. ज़रा इनका स्ट्रक्चर देखिए आप 6.4 में, तो ये कैसी होंगी? तो ये फिगर बना है, ये इस तरीके की होंगी. कुछ छोटी भी हो सकती हैं, और थोड़ा बहुत स्पेस भी छोड़ देना, बस इतना बना दोगे तो ठीक है. सो ये इतना है, ठीक है. तो ये क्या है? इट इज़ वेरी लेस स्पेशलाइज्ड टिश्यू. ये पैकिंग टिश्यू है. और क्या है? इट हैज़ इंटरसेलुलर स्पेस होगा क्या? इंटरसेलुलर स्पेस. सो इट हैज़ इंटरसेलुलर स्पेस भी होगा इसमें. अब आगे देखो और क्या क्या चीज़ होगी. नाउ difference between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Now, According to bio, less than B greater than difference is less than B greater than. Parenchyma cells are found in every soft part of the plant, but
लेट अस सी कि पैरेनकाइमा में और क्या क्या चीज़ हैं. सो ये इट इज़ फाउंड इन एवरी सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, जिसको हम खाते पीते हैं, जो बहुत सॉफ्ट है और जो बिल्कुल गीला वेट पार्ट है, तो कहाँ पाई जाती है बताओ? इट इज़ फाउंड इन एवरी सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट. अच्छा, स्क्रीन ब्लड हो गई है, एक मिनट. सो अब देखिए कुछ ठीक हुई. इट इज फाउंड, थोड़ा ठीक हुआ प्रार्थना? ब्लड है, अच्छा. ओके, नाउ जस्ट होल्ड, वी विल